امن کی باتیں تو صرف کمزوروں کا سہارا ہے، طاقتور تو سسٹم اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے۔ اور ریئلزم کی تھیوری بھی کچھ یہی کہتی ہے کہ پالیٹکس از دا اسٹرگل فار دا پرسوٹ آف پاور ٹو اٹین نیشنل انٹرسٹ۔ اگر ہم ریئلزم کی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں 2026 تک، تو ایک چھوٹا سا اس کی ایک ہم بریف اگر اس کی ہم ہسٹری دیکھیں تو 431 BC میں جب پیلوپونیشین وار ہوتی ہے بٹوین ایتھنز اینڈ اسپارٹاس، تو ایتھنز نے اسپارٹاس کو ڈراتے ہوئے کہا تھا کہ طاقت ہی طاقت ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 1513 میں ایک رینیسانس ریئلزم ملتا ہے، جس میں صدیوں بعد جا کے میکیاویلی نے اپنی ایک بک دا پرنس میں لکھا کہ دیر از نو مورالٹی ان پالیٹکس، یعنی سیاست میں کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ پھر ہم نے 1979 میں کولڈ وار کے ٹائم پیریڈ میں ہم نے ایک نیو ریئلزم، ایک اسٹرکچرل ریئلزم کو دیکھا، جس میں ہمیں کینتھ وارڈز کہتے ہیں کہ سسٹم ہی ہمیں لڑنے پر مجبور کرتا ہے، بیکاز دیر از نو اوور اینڈ ابو سپریم اتھارٹی، کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے، کوئی گلوبل پولیس نہیں ہے جو وارز کو، جو کانفلکٹ کو روک سکے، سسٹم ہی ہمیں لڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو کولڈ وار کے ٹائم پیریڈ میں ہم نے ایک اسٹرکچرل نیو ریئلزم دیکھا، یعنی کہ دو اسٹیٹس آپس میں اپنی پاور کو میکسیمائز کر رہے تھے، اور اس خوف اور اس ڈر سے کہ کہیں یو ایس آر پہ نہ اٹیک کر دے اور کہیں یو ایس اے پہ نہ اٹیک کر دے، تو دونوں کی طرف سے ایک بیلنس آف پاور اور ایک میکسیمائزیشن آف پاور تھی۔ تو پھر ایک کانسیپٹ ہم نے دیکھا انارکی کا، یعنی ایبسنس آف لا لیسنس، جب کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہوگی، جب کوئی گلوبل پولیس نہیں ہوگی، جیسے کہ ورلڈ وار 1 کے بعد ہم نے دیکھا لیگ آف نیشن بنی، پھر ورلڈ وار 2 ہی، یعنی لیگ آف نیشن کا فیلئر ہی ورلڈ وار 2 کی طرف ہمیں لے کے گیا۔ پھر ورلڈ وار 2 کے بعد ہم نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل دیکھا، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے بعد ہم نے بہت سی وارز دیکھی جو کہ ہم ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے 1990s اینڈ 2000 والے ایرا میں ہم نے دیکھا اوفینسو اینڈ ڈیفینسو ریئلزم۔ ڈیفینسو ریئلزم یعنی اتنی طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اوفینسو ریئلزم صرف اتنی طاقت رکھو کہ تم دنیا کے ڈان بن سکو۔ پھر ہم نے 2026 جو کہ کنٹمپریری ایرا ہے، اس گلوبلائزیشن میں ہم نے ملٹی پولیرٹی کا ایک آرڈر دیکھا، اور ہم نے ماڈرن ریئلزم دیکھا، جس میں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ صرف اور صرف سپر پاور بننا ہی ایک سولوشن ہے، کیونکہ گلوبلزم ختم ہو چکا ہے، انٹرنیشنلزم ختم ہو چکا ہے، انسٹیٹیوشنلزم ختم ہو چکا ہے، یہاں پر کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے، یہاں پر کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں پر وارز کو روکا جا سکے۔ اب صرف اور صرف نیشنل انٹرسٹ ہے، یعنی کتابوں میں لکھا قانون اب ٹینکوں کا راستہ نہیں روک سکتا، کیونکہ اب کوئی بھی سپریم اتھارٹی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی گلوبل لیڈرشپ نہیں ہے جو جنگوں کو روک سکے، جو کانفلکٹ کو ختم کر چکے۔ یہی ریئلزم کہتا ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کے پاس پاور ہے وہی دنیا کو رول کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم اگزامپل دیکھتے ہیں یو ایس اے کی۔ یو ایس اے ہم نے دیکھا وینزویلا میں پاور کی بیس کے اوپر جا کر وہاں کے پریزیڈنٹ کو کڈنیپ کر دیا۔ پھر ہمیں ایک ایگزامپل ملتی ہے رشیا یوکرین وار کی۔ ریئلزم میں امن یا پیس اب صرف تب تک ہے جب تک دونوں اسٹیٹس کے پاس ایکول کیپیبلٹیز ہیں، ملٹری کی بھی، ویپنز کی بھی، نیوکلیئرز کی بھی، یوز آف فورس اگر ان کا ایکول ہے تب تک پیس مینٹین ہے۔ جو اس میں کمزور ہوگا تو وہاں پہ سیکیورٹی ڈائلیما ہوگا، اور وہاں پہ کولونائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، اٹیک کرنے کی کوشش کی جائے گی، وار کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ریئلزم یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹس ڈونٹ فائٹ فار freedom, but they fight for natural resources, oil, and for their personal and state interest۔ تو ہم نے ریئلزم میں یہ دیکھا کہ اس میں صرف پاور ہی پاور ہے، یہاں پہ کوئی مورالٹی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی کوآپریشن نہیں ہے، یہاں پہ کوئی پیس نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہے، یہاں پہ ون ون سچویشن نہیں ہے، بس صرف اور صرف ایک زیرو سم ہے۔ زیرو سم پالیسی کے اکارڈنگ اسٹیٹس ایکسپینشنسٹ پالیسیز کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اسٹیٹ ریئلسٹ بن کے دوسری یعنی کہ کمزور اسٹیٹس پر اٹیک کر رہے ہیں۔ تو ریئلزم یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس پاور ہے
वो ही सर्वाइव कर सकता है इस एनार्किक सिचुएशन में, और पावर की बेस के ऊपर आप स्टेट्स को डोमिनेट कर सकते हैं। अब अगर हम रियलिज्म के स्केलेटन को देखें, एक उसकी बेसिक फाउंडेशन को देखें, तो हमें 3 चीज़ें नज़र आती हैं। पहले नंबर पे हमें नज़र आती है एनार्की, जिसको हम कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ लॉ है, लॉलेसनेस है। दूसरे नंबर पे हमें नज़र आता है नेशनल इंटरेस्ट, यानी स्टेट्स का अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, उनका पर्सनल भी इंटरेस्ट होता है इंडिविजुअल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे नेशनल इंटरेस्ट होता है। स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं और बाद में बाकी चीज़ें देखती हैं। इसी के ऊपर एक कोटेशन भी है कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी बट देयर इज़ परमानेंट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमेशा स्टेट्स का पहले होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं। और तीसरे नंबर पे है जी सेल्फ हेल्प। तो सेल्फ हेल्प यानी एक एनार्की है, लॉलेसनेस है, ग्लोबल पुलिस नहीं है, दुनिया में वॉर्स रोकने के लिए कोई इदारा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई डिप्लोमेसी नहीं है, कोई विन विन सिचुएशन नहीं है। इसलिए स्टेट एक प्राइमरी एक्टर है, उसने अपनी टेरिटरी का, अपनी फिजिकल बाउंड्री को खुद सिक्योर करना है, क्योंकि दुनिया में एनार्की है, दुनिया में लॉलेसनेस है। तो सेल्फ हेल्प स्टेट को अपने आप के ऊपर रिलाय करना चाहिए। तो आईआर के इस रियलिज्म में हमें ये 3 कॉन्सेप्ट्स नज़र आते हैं। और अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट के भी कुछ इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि स्टेट का एक इंटरेस्ट है सिक्योरिटी, स्टेट का दूसरा इंटरेस्ट है इकॉनमी, और स्टेट का तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो है आइडियोलॉजी। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जिसको हम ड्यूरल लाइन भी कहते हैं या पाक अफगान बॉर्डर भी कहते हैं, जो कि 2611 किलोमीटर के है, तो पाकिस्तान के लिए वहाँ से एक थ्रेट है, एक सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि अफगानिस्तान से ड्यूरल लाइन क्रॉस करके बलोचिस्तान में, केपीके में जो इंसर्जेंसीज होती हैं, जो अटैक्स होते हैं, जो टेरर अटैक्स होते हैं, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट है, जो कि पाकिस्तान के इंटरनल स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी को ख़राब कर रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान का ये इंटरेस्ट है कि अफ़गानिस्तान के साथ अगर उसके अच्छे ताल्लुकात होते हैं, अफ़गानिस्तान में या इस वेस्टर्न बॉर्डर पे अगर सेफ्टी हो जाती है, अगर सिक्योरिटी हो जाती है, तो पाकिस्तान का ये सिक्योरिटी वाला इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे इकॉनमी की, तो अगर हम इसको लिंक करें कि जहाँ पे टेररिज्म होगा, जहाँ पे टेरर एक्टिविटीज़ होंगी, तो वहाँ पर इकॉनमी कैसे ग्रो करेगी। तो टेरर एक्टिविटीज़ की वजह से दूसरे मुल्क जो होते हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में नहीं लाते। तो वो जो बाहर के जो मुल्क होते हैं वो आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लाते। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें सी पैक की, तो सी पैक अगर डिले हो रहा है, या सी पैक को हम बात करें कि उसको थ्रेट क्या है, तो वो इकोनॉमिकल जो उसको थ्रेट है वो टेररिज्म थ्रेट है। आपने देखा होगा बलोचिस्तान में एक लेडी ने सुसाइड बॉम्ब जैकेट पहन के चाइनीज़ वैन के ऊपर अटैक किया था, ताकि चाइना के सी पैक को जो है ना उसको फेल किया जा सके। तो स्टेट के लिए उसका सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई थ्रेट ना हो, उसकी इंटरनल स्टेबिलिटी के ऊपर कोई थ्रेट ना हो। इसी तरह अगर हम बात करें इकॉनमी की, तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट इकॉनमी भी है, ताकि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक रिजिलियंट या इकोनॉमिक सेंट्रिक एक स्टेट बन जाए, जो अपनी मिलिट्री के ऊपर अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करके इन सिक्योरिटी थ्रेट्स को ख़त्म भी कर सके। और अगर हम तीसरे नंबर पे देखें कि आपकी आइडियालॉजी, इसमें अगर हम एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान एक इस्लामिक आइडियालॉजी के ऊपर बना था, 2 नेशन के ऊपर बना था। तो पाकिस्तान की आइडियालॉजी ये है कि बीइंग अ मुस्लिम स्टेट, पाकिस्तान विल नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल, क्योंकि इजराइल ब्रदर कंट्री जो है पैलेस्टाइन, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को सब्जुगेट करे, वहाँ पे उसकी एक्सप्लॉइटेशन करे। तो बीइंग अ मुस्लिम स्टेट, पाकिस्तान कैन नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इस्लामिक आइडियालॉजी। तो इस तरह के ये 3 जो हैं स्टेट के भी इंटरेस्ट होते हैं, और जो बेसिक स्केलेटन या बेसिक स्ट्रक्चर है आईआर की रियलिज्म का, जो हमने देखा कि एनार्की है, फिर हमने देखा एनार्की के बाद नेशनल इंटरेस्ट है, और फिर सेल्फ हेल्प है। तो अगर
इस एनार्किक स्ट्रक्चर में आपने सर्वाइव करना है, तो अब आप सर्वाइव कैसे करेंगे? क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है और स्टेट खुद एक प्राइमरी एक्टर है अपनी स्टेट को, अपनी फिजिकल बाउंड्रीज को, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सेल्फ हेल्प कैसे होगी? सेल्फ हेल्प होती है कि आप अपने आप के ऊपर रिलाई करते हैं, आप अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप अपने वेपन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको एनहांस करते हैं, आप बैलेंस ऑफ पावर करते हैं ताकि आपके ऊपर कोई अटैक ना कर सके। आप एक डिफेंसिव अप्रोच को चूज़ करते हैं या ऑफेंसिव अप्रोच को देखते हैं। तो आप अपनी मदद के तहत आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि आपकी तरफ कोई भी अटैक ना कर सके। अगर हम इस एनार्किक स्ट्रक्चर में एग्जांपल लें इजराइल एंड पैलेस्टाइन की, तो इजराइल एक तरफ स्ट्रॉन्ग है और पैलेस्टाइन एक तरफ वीक है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है इस एनार्किक सिचुएशन में। अगर हम इसको दूसरे लेंस से देखें कि एनार्की है, कोई लॉलेसनेस नहीं है, कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एफिशिएंसी नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, तभी तो इजराइल अटैक कर रहा है फ़लस्तीन पे, तभी तो इजराइल अटैक कर रहा है ईरान पे, तभी तो मोदी की गवर्नमेंट यानी इंडिया फंडामेंटल राइट्स या उनको फ्रीडम नहीं दे रहा कश्मीर में। इसीलिए और इसी वजह से रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, क्योंकि रशिया स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन स्ट्रांग नहीं है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है। इस एनार्किक स्ट्रक्चर में सर्वाइव वो करेंगे जो स्ट्रांग होंगे, जिनकी इकॉनमी स्ट्रांग होगी, जिनकी मिलिट्री स्ट्रांग होगी। यहाँ पर भी रशिया का जो सिक्योरिटी अगर इंटरेस्ट देखें तो वो यही था, क्योंकि यूक्रेन अलायंस बनने जा रहा था, मेंबर बनने जा रहा था नेटो का। तो रशिया को लगा कि ये मेरी बॉर्डर के ऊपर मुझे एक सिक्योरिटी थ्रेट है नेटो की साइड से, तो उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। यानी हमेशा स्टेट अपना इंटरेस्ट देखती है, तो यहाँ पर उसका इंटरेस्ट था सिक्योरिटी का। इसी तरह अगर हम सी पैक को ज़रा देखें, एनालाइज करें कि चाइना ने क्यों अपना बीजिंग वाला रूट, जो गल्फ से वो 40% ऑयल लेता है, स्टेट ऑफ मलाक्का के थ्रू वो जाता है, वहाँ से उसने शिफ्ट करके काशगर जो सिटी है चाइना का, वहाँ से डायरेक्ट वो नीचे गवादर में आता है। तो इसकी क्या रीज़न है? यहाँ पे भी यही रीज़न है कि उसकी यहाँ पे एक सिक्योरिटी रीज़न भी थी, क्योंकि स्टेट ऑफ मलाक्का में ऑकस हमें नज़र आती है, यूएसए न्यूक्लियर मरीन हमें नज़र आती हैं, जो कि चाइना को लगा कि ये एक जोक पॉइंट है स्टेट ऑफ मलाक्का, यहाँ पे मुझे कभी भी हाईजैक किया जा सकता है, मेरी शिप्स को रोका जा सकता है यूएसए की तरफ से। जैसे कि स्टेट ऑफ हार्मूज एक चोक पॉइंट है, बिल्कुल इसी तरह ये भी एक चोक पॉइंट है स्टेट ऑफ मलाक्का, जहाँ पे चाइना को लगा कि मुझे यहाँ पे यूएसए की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि यूएसए चाइना राइवलरी भी तो चल रही है। तो इसलिए उसने अपने सिक्योरिटी को इंटरेस्ट को देखते हुए उसने अपने आप को शिफ्ट किया काशगार से नीचे गवादर में, ताकि मैं पाकिस्तान की फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर ही अपना सी पैक को डायरेक्ट ऊपर से नीचे लेके आ रही। दूसरा अगर हम इसमें इंटरेस्ट देखें इकॉनमी का, तो आप देखें जो बीजिंग से गल्फ तक जो रास्ता है ये तकरीबन 12,900 किलोमीटर का है। काफ़ी टाइम लग जाता है इंपोर्ट में, काफ़ी डेज लग जाते हैं और ये एक्सपेंसिव भी है। तो चाइना ने अपनी इकॉनमी को देखते हुए काशगर से डायरेक्ट नीचे गवादर में अपने आप को लैंड किया, और यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये तकरीबन 2500 किलोमीटर का है। तो इकॉनमी को भी अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहाँ पे चाइना ने सिक्योर किया, अपनी सिक्योरिटी का जो इंटरेस्ट था उसने वो भी उसको सिक्योर किया। तो इस तरह से स्टेट्स अपने इंटरेस्ट को देखती हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो रियलिज्म की अगर हम बात करें तो हमेशा स्टेट का अपना इंटरेस्ट होता है। स्टेट कोई कॉपरेशन में नहीं जाती, स्टेट किसी के फंडामेंटल राइट्स का नहीं सोचती, स्टेट पीस का नहीं सोचती। स्टेट को बस ये होता है कि मेरा इंटरेस्ट सबसे पहले, मेरा फ़ायदा सबसे पहले, मुझे ताकतवर बनना है, ताकि मैं इस मल्टीपोलैरिटी में, मैं इस दुनिया में, मैं इस एनार्किक स्ट्रक्चर में अपनी बात कहलवा सकूं, मैं ही पावरफुल बनूं। यूएसए की आप एग्जांपल ले लें, यूएसए पावरफुल है इसलिए तो वेनेजुएला में जाके वहां के प्रेसिडेंट को उसने कैप्चर कर लिया। अगर यहाँ पे कोई पीस की बात होती, कोई कॉपरेशन की बात होती, कोई टेबल टॉक की बात होती, तो वो हमें नजर आ जाती। इसी तरह यूएसए ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि उनका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पहले आता है, ताकि ईरान को साइडलाइन किया जा सके। और जो इजराइल की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है टुवर्ड्स
पैलेस्टाइन वो इजीली अचीव की जा सके, भले उसको जितना भी वहाँ पे अटैक्स करने पड़े, मिसाइल्स फेंकने पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसका इंटरेस्ट पहले है, यानी उसकी पावर पहले है। आपको स्टेट्स को फंडामेंटल राइट्स, स्टेट्स को इंसानियत का, स्टेट को मोरालिटी का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता। जो पावरफुल, जो रियलिस्ट स्टेट्स होती हैं, जो इगोइस्टिक स्टेट्स होती हैं, जो सेल्फिश स्टेट होती हैं, जो सेल्फ सेंट्रिक स्टेट्स होती हैं, वो फिर अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को परस्यू करते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। वो फिर प्रीडेटरी हेजमॉन बन जाते हैं। वो अपनी प्रीडेटरी हेजमॉनिक नेचर और पॉलिसी की वजह से वो बढ़ते जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या होगा, ह्यूमन वेलबींग का क्या होगा, वो कितना एक्सप्लॉइट होंगे। तो रियलिज्म जस्ट पावर के बारे में बात करता है, रियलिज्म पावर मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करता है, क्योंकि वो कहता है स्टेट्स इगोइस्टिक हैं, स्टेट्स सेल्फिश हैं। थैंक यू।